Namaskar, Swati ma'am. On behalf of all participants and CCIT, I heartily welcome on that virtual platform, ma'am. It's my privilege to introduce Ms. Swati Singh Sambyal ji in our CCIT training programs. And Ms. Swati Singh Sambyal is a renowned researcher on waste management. Ms. Swati has worked in India and as well as across global south on development issues concerning integrated waste management and resource management. Ms. Sambyal has done city-scale implementation projects in India and decentralized waste management in the states of Bihar and Himachal Pradesh. She has also worked in Zanzibar in Tanzania, Ethiopia, Ghana, and Namibia in bringing policy and implementation reforms and pushing for an integrated waste management approach by adopting circular solutions. She has worked extensively with governments and environmental regulatory agencies of Bhutan, Sri Lanka, and Bangladesh on projects related on environmental compliance, impact assessment, waste and wastewater management. She has been part of the National Geographic Forum of Circular Economy. Ms. Sambyal is trained at Swedish EPA, Stockholm, and Norwegian EPA on environmental governance and planning. She is presently associated as waste management specialist with UN Habitat India, looking after projects in India and Global South. She has worked as the head of program on municipal solid waste at New Delhi based environment policy and advocacy organization Center for Science and Environment over 9 years. She has been a part of national and international advisory boards on solid waste management, and Ms. Sambyal is associated with CCIT for a long time and sharing his experiences with teachers and educating our teacher fraternities all over the country. So once again, I welcome you, ma'am, on that virtual platform and giving your precious time with us. Thank you so much, Mithun, for that very elaborate introduction. And I think I'm always lucky to get invited to CCRT trainings and, I think एक बहुत अच्छा माध्यम है जो भी काम हम ग्राउंड पे करते हैं वो आप लोगों से शेयर करने का और इवन आपको प्रोत्साहित करने का कि कैसे फॉर इंस्टेंस वेस्ट मैनेजमेंट इज समथिंग जो स्कूल लेवल पे इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो आई थिंक आई रियली एंजॉय दीज सेशंस बिकॉज आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है बहुत सारी केस स्टडीज स्टोरीज आप लोग क्या कर रहे हैं अपने स्कूल लेवल पे मुझे सीखने को मिलता है एंड देन ऑफ कोर्स वी ऑलवेज डिस्कस अराउंड क्या क्या चीजें हम स्कूल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो हमसे कंट्री लेवल या सिटी लेवल पे करते हैं हम स्कूल लेवल पे कैसे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं so yeah, and then thank you to all of you. I would always appreciate a physical session more, but I think it's the challenge of today's time. But also, no, it's really good कि हम लोग अपने comfort zone से आराम से screen on करके या mobile screen off करके एक session attend कर सकते हैं. So I think it's convenient, but physical sessions are always more entertaining. I'm sure you all will agree. So I think with that, let's start the session. Just give me a heads up if you could see my slide. Technology is always... Slide is not... Yeah, yes. Mithun, I'm just opening my presentation. So मुझे थोड़ा time दीजिएगा. Sure, ma'am. And I have time till 1:30, right? We have time till 1:30? Yes, Swati ma'am. You have time till 1:30. Okay. Thanks Please a lot. go ahead. Please go ahead. Okay. It's always a pleasure to listen to you, ma'am.
Thank you so much. So, I've divided this presentation and I think I'll speak in Hindi, English both. कुछ technical jargons हैं जो of course मुझे English में ही बोलने पड़ेंगे, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हिंदी में बात करूं। सबसे पहले कि क्यों स्कूल लेवल पे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हम आज अलग अलग आप 90 टीचर्स हैं और भारत के अलग अलग कोने से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे लगता है आज के टाइम में ऐसा कोई सिटी नहीं है जो कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से प्रभावित नहीं है, चाहे वो पोल्यूटेड एयर हो, चाहे वो पोल्यूटेड पानी हो, चाहे वो आपका इन जनरल वातावरण हो, पर्यावरण हो, कि आपके शहर में पेड़ कम हो रहे हैं, आपके शहर में ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है। तो मे बी हम रियलाइज नहीं करते हैं, पर हमारे हर शहर में, हमारे सराउंडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आसपास हो रहा है जो जाने या अनजाने में या तो हमें पता है या नहीं पता है। For instance, Hava, they say it's a silent killer because most of the cities, as per WHO's last survey, about 50% of class 1 cities in India are severely polluted. But हम of course इस पे ज़्यादा गौर नहीं फरमाते हैं क्योंकि हमें एयर पोल्यूशन दिखता नहीं है। of course जब वो उस लेवल पे चल जाता है कि आप सांस में, दिल्ली में रहती हूँ एंड दिल्ली में 2-3 महीने बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, स्पेशली द विंटर मंथ्स, एंड ऑफ कोर्स ये फिनोमेनन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ गया है। दैट कुड बी ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस, कोल पावर प्लांट्स, व्हीकलर पोल्यूशन, वेस्ट बर्निंग। तो आई थिंक आज के टाइम में ऐसा कोई शहर नहीं है जो कि प्रदूषण के मुद्दे से फ्री है। मे बी गांव होंगे, मे बी कुछ फॉरेस्टेड एरियाज होंगे या इको सेंसिटिव जोन्स होंगे, पर अमूमन काफी जितने भी शहर हैं दे आर हेविली इम्पैक्टेड। तो जैसा कि मैं एयर पोल्यूशन के बारे में बता रही थी, WHO का 2018 में जो सर्वे हुआ था, उसमें ये निकल के आया कि 15 में से जो 14 सिटीज हैं वर्स्ट अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन, वो इंडिया में है। आप देख सकते हैं यहाँ पटना का नाम है, यहाँ दिल्ली का नाम है, यहाँ लखनऊ का नाम है, यहाँ आगरा का नाम है, यहाँ श्रीनगर का भी नाम है, यहाँ जयपुर का नाम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर शहर डल लेक के पास है तो वहां प्रदूषण नहीं है, और अगर वहां माउंटेन्स हैं तो वहां प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण से आज हमारे, और वायु प्रदूषण से आज काफी हमारे शहर प्रभावित हैं। और अगर हम कुछ और शॉकिंग फिगर्स की तरफ देखें तो 2017 में 12.5% ऑफ टोटल डेथ्स इन इंडिया दे वर एट्रीब्यूटेड ड्यू टू एयर पोल्यूशन। एंड अभी जो प्रीमेच्योर डेथ्स है सबसे हाईएस्ट अंडर 5 चिल्ड्रन में, that is due to toxic air. So clearly air pollution is a silent killer and धीरे धीरे इसके levels हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। Clearly we need regulation around it. Clearly we need more robust action around it. दूसरा जो एक मुद्दा है जो मुझे लगता है कि हम आसपास ऑब्जर्व करते हैं, नदियां, हमारी नदियों की हेल्थ कैसी है, बायोटा कैसा है। सो 2018 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जब एक स्टडी किया था तो उन्हें पता लगाया कि 351 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस हैं हमारे देश में, और 45 स्ट्रेचेस तो क्रिटिकली पोल्यूटेड है। जैसे कि दिल्ली यमुना के किनारे बसा है, पर आप यमुना जाएंगे तो वो एक नाला है, वो एक बेसिकली एक नाला है जहाँ पे सारा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और लीचेट आता है। प्रॉब्ली आप वहां 5 मिनट खड़े भी नहीं हो पाएंगे, आपका सर दुखने लगेगा। और टॉप 10 स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस हैं वो है महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, केरला, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और गोवा। तो ऐसा नहीं है कि केरला और गोवा जैसे स्टेट्स भी जहां दिखने में लगता है कि वो इतने रिवर स्ट्रेचेस हैं, बहुत सुंदर है, बट पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है। और काफी मेजर पोल्यूटेंट्स, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन, आर्सेनिक, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। आई जस्ट वांटेड टू गिव लाइक अ टच कि ये सब मुद्दे बहुत जरूरी हैं। इवन एज टीचर्स हमें इन सब मुद्दों के बारे
इन मुद्दों को जानना जरूरी है, प्रॉब्ली स्टूडेंट्स को इनसे अवेयर कराना, जो भी आपके अगर सेशंस होते हैं स्पेशलाइज, जरूरी है। तो ये सब मेजरली कुछ कंटामिनेंट्स हैं जो कि मेजरली स्टेट्स में अफेक्ट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स को अफेक्ट करते हैं। अगर हम फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो पिछले कुछ सालों में जो हमारे फॉरेस्ट का हेल्थ है दैट हैज डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। ऑफ कोर्स हम सर्विस में बात करते हैं कि फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, बट वो किस तरह का फॉरेस्ट कवर बढ़ा है वो एक क्वेश्चन मार्क है। सो डेंस फॉरेस्ट रिड्यूस हुआ है और ओपन फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है। और जो फॉरेस्ट कवर है, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, has reduced significantly. Per capita forest cover has reduced from 0.11 hectare per capita to about 0.06 hectare currently. और जो हमारी वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी का डेटा है वो बहुत ज्यादा पुअर है। आई मीन ऑफ कोर्स बिग मैमल्स का गिनती होता है और प्रॉपर सर्वेस होते हैं, बट टॉकिंग अबाउट अदर फ्लोरा एंड फौना उसका डेटा बहुत ज्यादा नहीं है। और ओशंस और फिशरीज का जो डेटा है वो एग्रीगेटेड डेटा हमारे पास अभी तक नहीं है। तो क्लियरली इस एरिया में भी बहुत ज्यादा काम होना जरूरी है। दूसरी चीज, हम सब बात करते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी वाले महीने बढ़ रहे हैं, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा रैपिड हो रही है, फ्लडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब देखेंगे कि पिछले 100 सालों में, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा है, और अगर हम 100 साल में देखें तो आप नोटिस करेंगे कि सबसे ज्यादा जो हॉटेस्ट मंथ्स थे वो पिछले 10-20 सालों में है। और सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स थे वो पिछले 20-25 सालों के हैं। उससे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, ये सब इतना ज्यादा नहीं था। तो ऑफ कोर्स हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग जिसकी हम बात करते हैं कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, it's really not good, because of course उससे आपके सीजन्स इम्पैक्ट होंगे, क्रॉपिंग पैटर्न्स इम्पैक्ट होगा, even local biodiversity, flora, fauna, everything will get impacted. So again, ये दूसरा ग्राफ है जो कि मंथली ट्रेंड्स दिखा रहा है कि हर महीने में ये नोटिस किया गया है कि या तो देयर इज चेंज, ठंड वाले महीने थोड़े शिफ्ट हो गए हैं, तो दिसंबर में शायद ठंड नहीं पड़ती। फॉर इंस्टेंस दिल्ली में मैं नोटिस कर रही हूँ जनवरी इज लाइक द कोल्डेस्ट मंथ, नवंबर तक इट्स नॉट एट ऑल कोल्ड एज वेल। एंड अगर हम गर्म महीनों की बात करें तो टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो इवन मंथ्स में पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। जो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर हर मंथ का होता है उससे या तो ऊपर या उससे या तो नीचे है। सो ऑल दिस इज एट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज, which is because of a lot of activities that are harmful to the environment that we are doing. दूसरी चीज जो मैंने ऑफ कोर्स आपको बोला, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, फ्लड्स कितने हुए, फ्लैश फ्लडिंग कितना हुआ, या हेवी स्नोफॉल कहाँ पे हुआ। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले कुछ सालों में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो 2001 से लेकर 2010 में देखें तो 163 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए थे। अगर हम 1950-160 में देखें तो सिर्फ 27 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए थे। तो पर्यावरण में चेंज से जो इवेंट्स हैं, चाहे वो फ्लडिंग हो, चाहे वो फॉरेस्ट फायर्स हो, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और आज के टाइम में हमारे पास क्या क्या चैलेंज है? पहला चैलेंज हमारा पॉपुलेशन, कि हमें रिसोर्सेस भी चाहिए पर हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। हमें लैंड भी चाहिए, हमें खाना भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, पर वो चीजें लिमिटेड है, पर हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो हम कैसे मॉडल्स डिजाइन करें इस टाइम में और आने वाले टाइम में, ताकि हम अपने लिए भी रिसोर्सेस बचा पाए पर हमारे आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेस बचा पाए। ऑफ कोर्स पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, पर कैपिटा एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, वाटर अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। तो इस दायरे में रहते हुए हम कैसे सस्टेनेबली अपने रिसोर्सेस को कंज्यूम करें और बचाएं भी, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा
सवाल है, और ऑफ कोर्स इन सब एरियाज पे बहुत ज्यादा काम करना बहुत जरूरी है। दूसरा, फूड डिमांड, यू नो, चाहे दूध हो गया, चाहे ग्रेन्स हो गया, चाहे मीट और एग कंजम्पशन हो गया, चाहे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंजम्पशन हो गया, ऑफ कोर्स डिमांड कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ेगा ही। तो ऑफ कोर्स दैट डिमांड वर्सेस सप्लाई वर्सेस स्टोरेज, यू नो, दैट एंटायर डिबेट, उसको हम कैसे बैलेंस करके चलें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हम फाइट कर रहे हैं आज के टाइम में, क्लाइमेट चेंज, पैंडमिक, मुझे लगता है हम सबके लाइफ टाइम में ये पहला एक्सपीरियंस है कि वी वेंट थ्रू अ पैंडमिक इन आवर लाइव्स। आई डोंट थिंक सो हमारे जनरेशन में मैं किसी को जानती हूँ या आप किसी को जानते हैं who went through a pandemic. So clearly things are changing, but I think what is really important is that एक्शन का टाइम अब है, और अगर हम अभी एक्ट नहीं करेंगे तो शायद आगे एक्ट करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, our resources are getting degraded, and how do we save them is the biggest debate. और ये काम आई थिंक सरकार का नहीं है, ये काम कॉर्पोरेशन का नहीं है, ये काम सिर्फ टीचर का नहीं है, ये काम मेरा नहीं है, ये काम सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं है, आई थिंक ये काम हम सबका है। तो इसलिए आई जस्ट वांटेड टू गिव यू लाइक स्नैपशॉट ऑन क्या क्या हमारे चैलेंजेस हैं, बट इन चैलेंजेस को जानते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच हम कैसे अपना सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो इसके साथ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। आपके कुछ सवाल हैं तो मैं ले सकती हूँ 2 मिनट के लिए, एंड देन विल मूव टू आवर स्पेसिफिक डिस्कशन अराउंड वेस्ट। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, प्रॉब्ली जो भी आंसर करना चाहेगा, आपने अपने सराउंडिंग्स में पिछले कुछ सालों में क्या ऑब्जर्व किया है, आपकी पर्सनल क्या लर्निंग्स रहे हैं, और क्या पर्सनल लेवल पे हैव यू डन एनीथिंग, और स्कूल लेवल पे हैव यू डन एनीथिंग। सो इफ देयर इज एनीथिंग, आई मीन ये सब चीजें जो हमने सुनी, यू नो, कि ऑफ कोर्स प्रदूषण है और हम सब इस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, बट हैव यू नोटिस्ड इट एंड हैव यू डन एनीथिंग अबाउट इट? For instance, have you shifted to an electric car, or have you, you prefer a green surrounding more? So, आजकल there's a concept called urban farming, which जो घर के लेवल पे भी और स्कूल के लेवल पे भी और एक माइक्रोकॉस्म लेवल पे भी आप एक ग्रीन एनवायरनमेंट और ग्रीन फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने कुछ ऐसे अप्रोचेस के साथ या तो डील किया है या सुना है या खुद पर्सनली हैव यू इम्प्लीमेंटेड समथिंग? Over Ma'am, to all of you. Yeah. ma'am, I'm from West Bengal. My name is Srimoy Banerjee. Hi, Ma'am, Srini. hello, ma'am. Ma'am, in West Bengal, the Honorable Chief Minister has started a project in the schools called Nirmal Vidyalaya. And in that project, it is a very good initiative taken on her part that the schools are awarded at the end of 1 year on the basis of how they perform in keeping the school green and clean, as well as spreading among the children the awareness that they need to keep themselves clean as well as their surroundings clean. And I'm very proud to say that the school where I teach, it has been winning the award in its district for continuously 5 years. And what we have done is that we have engaged the students. It's a predominantly girls' school, ma'am. And we have engaged the students in Vana Mahotsav Utsav once a year on June 5th. And not only that, we have inculcated in them the habit of keeping themselves clean and hygienic, because for a girl or for a woman, personal hygiene is more important than for a man. Of course, for both of them, it's equally important, but for a girl, because of certain things that we face, which a man does not face, it is very important for her to keep herself clean. So we have started with the fact that cleanliness and godliness comes from within. And
if we are clean and if we keep ourselves clean, we can make our society and our surroundings clean. So we have appointed prefects in every class, and they change weekly, and these prefects see to it that the girls wear clean clothes, their nails are clean, their hair is clean, they maintain proper decorum in the class, and moreover, not only that, the schools and the surroundings of the school are frequently cleaned, and we try to um, involve our students in cleaning the school area, not to use plastics, because nowadays most of the junk food or fast food that guardians um provide to their children as lunch or tiffin come in plastics. So from the school gate only, we check those things, and we ensure that the girls do not bring plastics or things that are wrapped in plastics inside the school campus. And we have also made a decompost pit where the vegetable wastes and the peels of fruits and all, they are um, buried, and we have tried to um, involve the Indian Oil Corporation, who have come forward to help us with everything. And they have not only installed a clean centralized purifying drinking water plant in our school, but they are also helping the school and its surroundings in keeping the school clean, in introducing biodegradable items, educating the girls on the importance of keeping the environment clean and green. And not only that, not only the girls, but the teachers, the other clerical staff, the group D staff, they also plant a lot of trees. Not only vegetables are planted, fruits are planted, and flower gardens are there in the school. So as a matter of fact, it's a our school has set an example for the neighboring schools in our area, that every Okay. time, yeah, every time something is done, our school is given as an example that it should be followed by the other schools. So that has been done in our school. So that much I can tell you. Okay. Thanks, Srimay. I think a lot of good things are happening in your school, and I'm really happy to know that you're also looking into partnerships. I think आज के time में partnerships are really important, you know. So you've, for instance, done a private sector partnership, and also associating it with activities in the school. I think really good to know. Thanks for sharing. Next, I see Veena ji, Veena तंवर जी गुरुग्राम से, आप बताएंगे? हाँ. हेलो मैम। मैम एक्चुअली लास्ट 4-5 ईयर्स से ना मुझे साइनस प्रॉब्लम है, तो ड्यूरिंग अक्टूबर लास्ट एंड नवंबर स्टार्टिंग मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है, और इवन हम लोगों ने घर पे एयर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं, बट जैसे ही बाहर जाती हूँ मतलब 4-5 आवर्स तक ना मुझे मतलब हेडेक स्टार्ट हो जाता है, और वो इवनिंग तक इतना सीवियर हो जाता है। ये मैं लास्ट 5 ईयर से फेस कर रही हूँ, लाइक 4-5 ईयर्स से। और अब ये टाइम आ गया कि मुझे मेडिकेशन भी करना पड़ रहा है, कि जस्ट बिकॉज जो आप कह रहे हैं पोल्यूशन चेंज है, वो मुझे नहीं पता क्या कौन फील कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा फील कर रही हूँ। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड कि स्कूल में बच्चों को मतलब बच्चों को मैं प्लेस दिलवाती हूँ, स्पेशली दिवाली से पहले, कि कोई पटाखे नहीं चलाएगा। लाइक प्लांटेशन के लिए भी हर तरीके से मैम अपने इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, पर वही मैम आप वाली बात है कि एक टीम वर्क है, हम सबको ये चीज मिलके करनी होगी। I agree, Veena ji. I think a collective effort is very much important, but collective से भी पहले, I think मैं सबसे पहला emphasis करूंगी कि individual effort. आप जब खुद करेंगे तभी आप औरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर आप खुद कुछ नहीं कर रहे हैं तो शायद आप किसी को मोटिवेट भी नहीं कर सकते और इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते, या सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। अगर जो मैं कर रही हूँ और मैं खुद इम्प्लीमेंट ना करूँ, मैं खुद एक जीरो वेस्ट एडवोकेट हूँ, प्रीच करती हूँ, लोगों को लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में पर्सनली हेल्प करती हूँ, बट इफ आई डोंट डू इट, you know,
अपने घर पे, अपने सराउंडिंग्स में, और इफ आई हैव नॉट मोटिवेटेड माय फैमिली टू डू दैट, I don't think so. Doing it at government level or municipality level or any other country level doesn't matters. So I think कोई भी change है, it has to start from you. तभी मैं आप सबसे पूछ रही थी कि आपके personal learnings क्या हैं, आपके personal observations क्या है. So I think हम सेशन के दौरान और चर्चा करेंगे. मेरे पास कुछ और सवाल हैं आप लोगों के लिए. And I'll ask you as we proceed with the session. But let's move to our next presentation, which is more focused towards, why schools have to become zero waste hubs, or why schools have to become zero waste learning centers. आप सबको मेरा presentation दिख रहा है? If anyone can give me a heads up. Yes, ma'am. Okay, perfect. So, जैसा कि हमने पिछले कुछ slides में देखा, we all know now and it is established that we have a crisis, we have an issue, our environment is degrading, हमारी हवा polluted हो चुकी है, जैसा कि वीना जी ने बताया, उनको हमेशा headache का issue रहता है, and I'm sure अगर उनको as a adult रहता है तो बच्चों की क्या हालत होती होगी. हमारी नदियां मर रही हैं, और ऑफ कोर्स जो गार्बेज है, जो एक वेस्ट का इशू है हमारे सिटीज में, और सिर्फ हमारे ही शहर देश में नहीं, बहुत से कंट्रीज में गार्बेज इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. But it is also a problem because it leads to bad health, so sanitation, waste management, किसी भी सोसाइटी या अर्बन प्लानिंग कंपोनेंट की हम बात करें कि हमें कैसे सस्टेनेबल सिटीज हम कंस्ट्रक्ट करें, तो वेस्ट और सैनिटेशन नंबर 1 है, सबसे पहले ये सॉर्टेड होना चाहिए. एंड आई थिंक स्कूल्स में इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, इफेक्टिव सैनिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्कूल्स हमारे लिए एक लिविंग डेमोन्स्ट्रेशन हो, एक ऐसी जगह हो जहां बच्चे आके सीख पाए कि उन्हें बाहर निकलकर कैसा पर्यावरण चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए, कैसा सराउंडिंग चाहिए. और अगर इन्हीं सब चीजों को जीने का मौका उन्हें स्कूल में मिले, तो इससे अच्छा उपाय कुछ नहीं है. तो मेरे लिए स्कूल्स आर लर्निंग लैब्स, दे आर डेमोन्स्ट्रेशन लैब्स, कि जो चेंज आप सोसाइटी में चाहते हैं आप उसे स्कूल में इम्प्लीमेंट करिए, बिकॉज each one of you are targeting as teachers hundreds and hundreds of students. I mean, I think आप लोगों से lucky कोई नहीं है, because you are shaping the future. जो future हम लोग मिलके नहीं बना पाए, आप आने वाले future को shape कर रहे हैं by targeting thousands and thousands of students. So इसलिए हमें हमारा नजरिया स्कूल के लिए चेंज करना होगा, looking at it as demonstration or learning labs for our children, so that वो जो सोसाइटी हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं वो वहां पे लिव करके जाए, and once they move out they create a better society, at least which is better than the one we are living in. And of course, as I said before, the time is now, and if we lose this, there is not even a never left for us anymore. Okay. Coming to some statistics, maybe not very relevant for you, but I thought it's important to throw some numbers on you कि why waste management is an issue. So waste generation हमारा population growth को outpace कर रहा है 2 से 3 times. So अगर हर साल population growth is 3.5%, this is for India, waste generation is increasing by 5%. So you can imagine, it's like almost 2 to 3 times of our population growth. अगर हम solid waste generation की बात करें, कितना municipal solid waste, उससे मतलब आपका जो गीला सूखा कचरा, plastics, paper, cardboard, all that comes under municipal solid waste, including your hazardous waste, which is your sanitary waste, which is your biomedical waste, जो स्कूल लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल या हाउसहोल्ड लेवल पे जनरेट होता है. उस सबको मिला के आज के टाइम में 2021 में तकरीबन हम 1,32,000 टन्स पर डे जनरेट करते हैं. This would be close to 65 to 70 tons, million tons per annum. ये इतना कचरा है जितना सब सहारन अफ्रीका के 40 देश एक साल में जनरेट करते हैं, उतना हम as one country जनरेट करते हैं, just as a reference point, so these are huge numbers. And clearly हमारे जो शहर हैं,
they are struggling. Of course, we've had Swachh Bharat Mission, we've had some really good initiatives जो ऑपरेट हो रहे हैं, पर क्लियरली बहुत ज्यादा काम की जरूरत है at various levels. You know, it's not just government's job. ये पिक्चर एक डंप साइट की है मैंगलुरु शहर में, जहाँ पे मैं पिछले अप्रैल में थी एक स्टडी के लिए जो हम सिटी के साथ कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं. एंड यू कुड सी, आई थिंक द मोस्ट शॉकिंग पार्ट वाज दैट दिस डंप साइट वाज इन अ फॉरेस्ट एरिया एंड आउटसाइड द डंप साइट बाउंड्री is like a low-lying village. और जब बारिश का मौसम होता है, of course it's a coastal city, बहुत बारिश होती है, most of the waste flows into that village. And यहाँ पे अभी एक काफी NGT का litigation भी चल रहा है. तो I feel everyone who wants to get aware about the issue of waste should visit a dump site. जैसे कि दिल्ली में बात करूं, दिल्ली में हम 3 कचरे के पहाड़ से घिरे हुए हैं, and I'm sure हर शहर में कोई ना कोई एक ऐसी जगह है या बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपका वेस्ट जाता है, नॉट जस्ट हाउस होल्ड लेवल पे बट इवन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे. सो इसलिए क्लियरली अपने सराउंडिंग एरिया में, यू नो, देयर इज दिस सिंड्रोम कॉल्ड नॉट इन माय बैकयार्ड. लाइक हम सबको अपना बैकयार्ड क्लीन चाहिए, इनफैक्ट अपना फ्रंट यार्ड भी क्लीन चाहिए, बट कहीं और डंप करें वो चलेगा. सो आई थिंक दिस एटीट्यूड हैज टू गो. वी हैव टू मूव टुवर्ड्स इन माय बैकयार्ड. As institutions, as households, as societies, as RWAs, whatever we are generating, we should manage it on their own because it can be managed. That's why the entire debate about कि कचरा प्रबंधन सोर्स पे होना चाहिए, वो ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम ये मैनेजेबल है, ये इशू आप मैनेज कर सकते हैं. And of course, we are going through a lot of issues due to waste. सबसे बड़ा प्रॉब्लम लीकेजेस का, जो कि लैंड में लीकेज है. ऑफ कोर्स, यू नो, जस्ट अ मिनट, या सो लैंड लीकेजेस एंड लैंड कंटामिनेशन. अगर बहुत समय तक ये वेस्ट जमीन पे रहा तो ऑफ कोर्स ये पोल्यूट करेगा, प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक में टूटेगा, सॉइल कंटामिनेट होगा, जो हजार्डस मटेरियल है वो जमीन में लीच आउट होगा. और अगर पानी में जाएगा तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ आपके शहर की बाउंड्री नहीं, बहुत सारे और शहर की बाउंड्रीज और बहुत सारे दूसरे कंट्रीज की बाउंड्री तक है. सो इमेजिन दिस पिक्चर आई टुक, मैं शहर का नाम नहीं लूंगी, बट यू कुड सी इट्स जस्ट नेक्स्ट टू, ये बीच एरिया भी नहीं था, ये किसी इंस्टीट्यूशनल एरिया का डंपिंग साइट था. एंड एज यू कैन सी, रात को ये वेव्स पूरा कचरा, पूरा प्लास्टिक साथ में ले जाएंगी. ये एक शहर का ड्रेन है, यू नो, जहाँ पे अलग अलग पॉइंट से सारा नाला पानी इकट्ठा होता है एंड देन इट गोज टू द सी. बट जब द शॉकिंग पार्ट इज कि दिस ड्रेन हैज नथिंग बट प्लास्टिक्स एंड इमेजिन ऑल ऑफ इट इज गोइंग टू द सी. एंड ये सब रियल टाइम पिक्चर्स हैं. आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द सिटीज, ये कौन कौन से शहर हैं, बट ये हमारे भारत के शहर हैं. और ये पिक्चर आई थिंक 2-3 महीने पुराना भी नहीं है. नवंबर में आई वाज डूइंग सम सर्वे एंड ये वहाँ के पिक्चर्स हैं. सो क्लियरली मे बी हमारे सराउंडिंग्स क्लीन है, हमारे इंस्टीट्यूशंस क्लीन है, हमारे घर क्लीन है, बट हमें ये सब चीजें नहीं दिखते. बट जब हम जैसे लोग सर्वेस पे जाते हैं, हम ये सब पॉइंट्स देखने जाते हैं कि कहाँ कहाँ से ये कहाँ एंटर होगा. और इसको कंट्रोल करने का तरीका हमारे पास है. अगर हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कंट्रोल करें, हाउस होल्ड लेवल पे कंट्रोल करें, कमर्शियल लेवल पे कंट्रोल करें, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हमें एक शहर का मेजर ड्रेन पूरा प्लास्टिक से भरा हुआ दिखे, या हमें एक कोस्टल एरिया पूरा यू नो कचरे से भरा हुआ दिखे, और रात में जब हाई टाइड होती है सी पूरा ये कचरा ले जाता है. सॉरी यार. सो और इसके अलावा आई थिंक हम एक बहुत डिफरेंट टाइम में रह रहे हैं, राइट? आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोग घर में रहते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर ज्यादा करते हैं, तो आप नोटिस करिए कितना पैकेजिंग निकलता है, कितना बबल रैप निकलता है, कितना प्लास्टिक टेप निकलता है, कितना पेपर कार्डबोर्ड निकलता है. आप उसका क्या करते हैं? यू पुट इट इन योर डस्टबिन. सो स्लोली एंड स्लोली आवर कंपोजिशन ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो चेंजिंग. अगर 15-20 साल पहले जब सर्वेज और असेसमेंट्स हुए थे तो कहा जाता था गीला कचरा ज्यादा है, सूखा बहुत कम है, पर आज के टाइम में सूखा कचरे का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसमें भी बहुत सारा ऐसा कंपोजिशन है जिसका प्रोसेसिंग नहीं होता है. तो वो एक बहुत बड़ा
हमारे लिए चैलेंज है चेंजिंग कंपोजिशन का, क्योंकि धीरे धीरे यार लाइफस्टाइल्स आर चेंजिंग। आई थिंक हमें हर बार एक दूसरा मोबाइल का मॉडल चाहिए, या even if we have clothes, we want fancy clothes, you know. So there is no concept of minimalism anymore in our lives. It's all maximalism, you know. Jitna, the more prosperous you become, the more you want to buy, the more you want to shop, without thinking the kind of adverse impact it has on your surroundings. I think this is something जिसके बारे में कोई भी सोचता नहीं है, you know, the background of it or what it will lead to if I discard something. I think the moment we start thinking that what it will lead to if I discard something, ये सब pictures जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये गायब हो जाएंगे. But of course, the picture is beautiful. You know, it's not that sad as well. There are some case studies around waste management, resource management, जहाँ पे institutions ने शहरों ने बहुत अच्छा काम किया है. And मैं आपको ये case studies इस perspective से दिखाना चाहूँगी कि can you implement something like that in your school? And something that I want to highlight, the movement of waste management in any city, wherever it was successful, जहाँ भी वेस्ट कचरा प्रबंधन का मूवमेंट सक्सेसफुल है हमारे देश में, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत स्कूल से हुई थी. कहीं ना कहीं वॉलंटियर्स जो क्रिएट हुए थे या आर्मीज, ग्रीन आर्मीज जो बनी थी, वो सब स्कूल में बनी थी. सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने शुरुआत की थी इस सेशन की, कि आवर स्कूल्स हैव टू बी लर्निंग लैब्स, यू नो, कैसे हम सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जितने भी ये बेस्ट केस स्टडीज हैं जो मैं आपको बताऊंगी, इन सब का बैक स्टोरी कहीं ना कहीं स्कूल से कनेक्टेड है. सो फर्स्ट ऑफ कोर्स आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग केरला से हैं, बट अगर आप हैं वहां से, वहां के कुछ शहरों से, तो केरला आई थिंक इज द हब ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट मूवमेंट इन द कंट्री, जो कि मैंने आपको बताया था कि एट सोर्स पे आप कचरे का निष्पादन करें. तो इस मूवमेंट का शुरुआत बहुत सालों पहले, दशकों पहले केरला में हुआ था. और वहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे सिटी म्युनिसिपैलिटीज हैव क्रिएटेड सिस्टम्स ताकि इंस्टीट्यूशंस, एंड व्हेन आई से इंस्टीट्यूशंस आई मीन स्कूल्स एज वेल, अपना वेट वेस्ट मैनेज कर पाए एट सोर्स, अपना ड्राई वेस्ट, देयर इज लाइक अ सॉर्टिंग शेड जहाँ सॉर्ट होता है एंड देन इट्स कनेक्टेड टू अ वेंडर. or even commercial level pay, you know, there are systems installed to take care of waste. And that's why some of the cleanest cities, आज के टाइम में जो zero waste management movement है और उसकी हम बात कर रहे हैं कि शहरों में कूड़ा होना ही नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे शहरों ने जो शुरुआत की थी, वो I think there's a long list of cities in Kerala into that movement. So these are some of the various instruments that you would see in schools, at commercial level installed in Kerala, even at household level. So this is like a simple kitchen bin composter. I think this is something that you can do as a DIY with students also. It's nothing but your common dustbin, and usme they make these perforated pores and use it as a composter. Something as basic as matka composting, which could be used as a DIY. Then you have your pipe compost, which is nothing but your PVC pipe used for composting. And organic waste converter or aerobic bins that are there, ये majorly institutional level पे काफी आपको you know, तिरुवनंतपुरम, मालापुरा शहरों में मिलेंगे. And clearly, I think at school level, one thing that I've seen in a lot of institutions in Kerala is that they also have biogas plants. So if your school has a running kitchen, आई थिंक हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि आप एक बायोगैस प्लांट यूज करें, बिकॉज देन यू कुड यूज द गैस टू कुक एटलीस्ट एक मील कुकिंग, इट इजीली सपोर्ट्स. सो ये आई थिंक एक स्कूल का फोटो है आलापुरा में, एंड यस यू कैन सी that is the kitchen which is connected to a series of biogas plants, and this fuel is used to make you know, lunch or midday meals for the school. दूसरा जो केस स्टडी है वो पणजी का है. आप में से कोई गोवा से है तो आई एम श्योर आप लोग इस मॉडल से वाकिफ होंगे. हम लोग 3 point सेग्रीगेशन की बात करते हैं, बट पणजी में
बहुत सालों से, decades से there is like a 5-point segregation mechanism that is going on, जो कि institutional level, household level, residential level पे operate होता है, even in a lot of touristic centers. And there are strict checks, like if schools don't, or if institutions don't, or hotels, they don't segregate, there are heavy penalties. So this is something that is being practiced past 2 decades now. And it's a wonderful case study. Very recently, which was about a year back, Panji city launched 16-way segregation model, where they pushed schools कि आप 5 टाइप में तो सेग्रीगेट करके दे ही रहे हैं, आप स्कूल्स को और बच्चों को और सेग्रीगेशन सिखाने के लिए आप 16 पॉइंट में सेग्रीगेट करिए वेस्ट. सो ये 2 साल पहले 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था, एंड आई थिंक दिस इज स्टिल बीइंग implemented in Panji, where households presently, residential colonies, various institutions have to segregate their waste into 16 different categories. So you can look at कि हम तो सिर्फ 3 पॉइंट की बात करते हैं, बट ये एक ऐसा शहर है जो कि इंस्टीट्यूशंस को, लोगों को, होटल्स को, क्योंकि बहुत टूरिस्ट सेंट्रिक सिटी है पानाजी, प्रोत्साहित कर रहा है कि वो अपना वेस्ट 16 अलग अलग आइटम्स में सेग्रीगेट करें. And they have also recently launched something which is called Shop with Your Waste campaign, which is a very interesting campaign, wherein you use your waste as money. So basically under this campaign, if you are a household and I'm a shopkeeper, आप अपना वेस्ट 16 अलग अलग कैटेगरीज में सेग्रीगेट करके रखिए, और किसी भी दिन पे आप मेरी दुकान पे आ सकते हैं, एंड योर वेस्ट इज योर मनी. सो यू कैन गिव मी योर सेग्रीगेटेड प्लास्टिक, यू कैन गिव मी योर सेग्रीगेटेड मिल्क पाउचेस, you can give me segregated cardboards, and whatever article you want, there'll be a discount on that based on the amount and quantity of your waste that you give to me. And it's a win-win-win situation, क्योंकि एज अ हाउसहोल्ड आपको जो भी चीजें आपको खरीदनी है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपका वेस्ट बिकम्स योर मनी. यू नो, इट्स लाइक अ बार्टर सिस्टम. मेरा कचरा आप दुकान में दीजिए ना, आप कुछ सामान खरीद सकते हैं. शॉपकीपर के लिए इट्स अ विन-विन सिचुएशन, बिकॉज ही इज कनेक्टेड टू अ रिसाइकलर, जिसको बिल्कुल क्लीन कचरा मिल रहा है, जिसको वो प्रोसेस कर सकता है. तो वो शॉपकीपर को नॉर्मल अमाउंट से 1-2 रुपए एक्स्ट्रा देता है हर एक कमोडिटी को बाय करने में. एंड रिसाइकलर के लिए इट्स अ विन-विन सिचुएशन, ऑफ कोर्स, बिकॉज जितना क्लीन मटेरियल होगा उतना प्रोसेसिंग ज्यादा होगा. तो ऑफ कोर्स कुछ ऐसे शहर भी हैं जो यू नो बहुत एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं. एंड ये केस स्टडी आई थिंक वर्ल्ड वाइड इट हैज बीन शेयर्ड, एंड of course it can be implemented as a demo or as a pilot in a colony or in a society or in an institution, you know. I don't know आप में से कर्नाटका से कितने लोग हैं, but Mysuru again has a very good waste management model. Again, it's a very citizen centric model where initially a lot of awareness was done involving colleges. It's also an education hub. So a lot of awareness programs were done in initial years, colleges or school students ko leke, to motivate, you know, the residents to segregate waste. आज के डेट में मैसूरू 30 अलग-अलग कैटेगरीज में अपना जो वेस्ट है सेग्रीगेट करता है. एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द सिटी, बाय विच आई मीन चाहे स्कूल्स हों, चाहे कॉलेजेस हों, चाहे दुकानें हों, चाहे घर हों, यू हैव टू सेग्रीगेट योर वेस्ट. और फिर वो कुछ 9 जीरो वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स में जाता है और वहां से वो फर्दर चैनलाइज होता है. सो आई थिंक सार इन सब केस स्टडीज का ये है कि अगर आप सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप सॉर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप अवेयरनेस नहीं कर रहे हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट इज next to impossible. You know, awareness of course is number one, behavior change is number one, and then अलग-अलग fractions में segregate करना is like most important to ensure कि आपका waste किसी कूड़े के पहाड़ में ना जाए, किसी नदी में ना जाए, किसी नाले में ना जाए और प्रदूषण ना करे. एक और बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का. एंड आई थिंक अगर आप स्वच्छ भारत मिशन और विनिंग सिटीज के बारे में सुनते होंगे तो अंबिकापुर का नाम हर साल आता है. इट्स अ वेरी यूनिक मॉडल बिकॉज ये पूरा मैनेजमेंट शहर का इट्स डन बाय 440 women, जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है, जो कि कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है. और ये लोग अलग अलग संस्थानों को, रेसिडेंट्स को, दुकानों को ट्रेन करते हैं
जा जाके टू सेग्रीगेट देयर वेस्ट, और अगर सेग्रीगेटेड नहीं मिलता तो वो कलेक्ट भी नहीं करते हैं, दैट्स लाइक अ पेनल्टी। और जैसा कि आप देखेंगे अंबिकापुर में 17 सेंटर्स हैं जहाँ पे अलग अलग वार्ड से इंस्टीट्यूशन से वेस्ट आता है। वहां पे वो 30 अलग अलग भाग में सेग्रीगेट होता है, और उसके बाद वो एक टर्शरी सेंटर में जाता है जहाँ पे वो 150 डिफरेंट फ्रैक्शंस में सेग्रीगेट होता है। एंड probably it's the only city in India जहाँ पे segregation इस लेवल तक हो रहा है, and over a period of time this city is making money out of waste. So इनके लिए waste is not waste, it's money for them. So corporation को self help group को कुछ नहीं देना होता, they have provided them infrastructure. By infrastructure I mean 17 centers जहाँ पे अलग अलग वार्ड से वेस्ट आता है, and then a big tertiary center. They have provided them their uniforms and all personal protective equipment. And उसके अलावा जितना भी इनकम है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, हर एक लेडी को महीने का 15,000 का फी मिलता है। वो पूरा वेस्ट मैनेजमेंट से आता है, वेस्ट चैनलाइजेशन से आता है। तो आई थिंक हमारे देश में एक ऐसा भी मॉडल है जहाँ पे वेस्ट का संचालन इतने अच्छे तरीके से होता है कि ये 440 जो महिलाएं हैं, ये उस कचरे से जो पैसा मिलता है, जो रिसाइकलिंग से पैसा मिलता है, उससे दे आर एबल टू रन दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप। एंड ऑफ कोर्स अगेन एज आई सेड, स्कूल्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो जो अवेयरनेस के लेवल्स हैं, द फर्स्ट लेवल इज स्कूल, बिकॉज दे टारगेट स्कूल्स, बिकॉज अगर बच्चे कन्विंस हो गए कि सेग्रीगेशन क्यों जरूरी है, they'll go back to their home and they'll convince their parents कि आप अपने कचरे को अलग अलग करिए, segregation क्यों important है। और I think that really works well. That happened in Kerala as well, for that matter, many years ago, where जब आलापुरा में उसको पूरा एक जीरो वेस्ट शहर बनाने की बात हुई थी, तो सबसे पहले स्कूल्स को टारगेट किया गया कि बच्चों के एटीट्यूड और बिहेवियर को चेंज करिए, उनको समझाइए कि प्लास्टिक क्यों स्कूल में लाना जरूरी नहीं है, और प्लास्टिक का यूज कम करना क्यों जरूरी है, और क्यों कचरे को अलग अलग करना जरूरी है। इसका अहमियत अगर वो समझ गए तो वो अपने घर में जाएंगे और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे। सो आई थिंक दैट्स, you all play an important role in, you know, changing students and then changing society. That's what I wanted to convey. I think the last city is Panchgani. Again, it's an educational city in Maharashtra. It's a hill city. It's known for its boarding schools. And Panchgani mein institutional level pe, so this is a photo of a school where institutional level pe, क्योंकि वहाँ boarding schools होते हैं, आपको हर तरह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपको अगर आपके कैंटीन में गीला कचरा है तो you'll have to create a system for compost, और जो भी आपके बोर्डिंग स्कूल से, कॉलेज से जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको आप सेग्रीगेट करके रखें, और फिर कॉर्पोरेशन उसे 2-3 महीने में पिकअप करता है। सो अगेन पंचगनी हैज बीन अवॉर्डेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन। इट्स अ जीरो वेस्ट सिटी। यहाँ पे कोई डिस्पोजल नहीं होता है, यहाँ पे कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे सेग्रीगेशन परसेंटेज 100% है। Of course, the city is small. It's majorly, you know, an educational city. But clearly, we have to appreciate a model जहाँ पे everyone has been motivated to segregate, right, at institutional level to household level. ये बहुत recent pictures हैं विजयवाड़ा की, जहाँ मैं दिसंबर में गई थी, and वहाँ मुझे कम्युनिटी किचन मॉडल एक स्कूल में देखने को मिला। दिस इज नथिंग, ये स्कूल का जो टॉयलेट है that is connected to this biogas plant, and that plant is connected to this kitchen जहाँ पे lunch का खाना बनता है। So these are very recent pictures. So I think not just with solid waste, even आपका जो toilet waste है, you know, I think South में you call this as Amma kitchens or Amma model, and Tamil Nadu में I think this has been picked from Tamil Nadu, what is happening in Vijayawada. But it was success, you know. So these are like 14-15 December key pictures, and I could see the flame is enough to cook like a full lunch, and these ladies are cooking like food for the midday meal. And again, a lot of schools and a lot of government schools in Vijayawada and surrounding areas have this model.
where unka toilets are connected to this biogas plant, which are further connected to a community kitchen. So I think there are many innovative ways to deal with your waste. कोई एक तरीका नहीं है. Now, I mean, I think we'll take a break. I wanted to show you a few case studies, but meanwhile, as I show you, अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे तो please go ahead. Yeah. I wanted to play a few videos. एक बार देखते हैं अगर चलेंगे तो नहीं चलेगा या नहीं. Let me know आपको आवाज आ रही है. Yes, ma'am, clearly. Audible? Yes, ma'am, clearly audible. Okay, perfect. Children and the teachers have been able to connect with the nature and do a lot of their lessons out. So this is Fab India School in Pali, Rajasthan, which is doing a lot of work on making the school like an energy efficient school. आप में से किसी ने energy efficiency की बात की थी. And also like a lot of other things. So I'm just sharing some of the initiatives of this school. Yeah. Children and the teachers have been able to connect with the nature and do a lot of their lessons outside in the nature, showing them practically and finding results and bringing about better changes. हमारे यहाँ पे 3.5 किलोवाट के पहले सोलर पैनल्स लगे हुए थे और इस साल हमारे 10 किलोवाट के सोलर पैनल निकल सकते हैं जिसके कारण हमारे 3.0 किलोवाट के सोलर पैनल हमारे 90% इलेक्ट्रिसिटी हमारे सोलर पैनल से चलती है और 10% हमारी दिल्ली पहुंचाती है. Here we started rainwater harvesting, which is roof-topping. From there, the water is transferred to bore well. There it is stored and used for recharging the groundwater. Also used in gardening, toiletries, mopping floors, and etc. We have another open harvesting system, which is in the forest. That is unstructured and water collect there, and it is used in planting the forest areas. स्कूल ने इस साल ग्रीन लैंड एरिया इंक्रीज किया है क्योंकि इस साल हमने फॉरेस्ट को और ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्लांटेशन वर्क किया है स्कूल एडमिन ऑफिस के सामने. ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने पोटैटो, टोमेटो, कोरिएंडर लीव्स एक्सेट्रा वेजिटेबल्स लगाए. हमारे स्कूल ने इस साल 2 बीन्स यूज किए सभी क्लासरूम में. एक तक तो वेट डस्टबिन से, दूसरे तक ड्राई डस्टबिन से. वेट में हम जितने भी हम हमारे जो बायोडिग्रेडेबल जितने भी वेस्ट है वो हम यूज करते हैं, जैसे कि फूड वेस्ट है और जो भी क्लासरूम में जो वेट वेस्ट है वो हम अपने जो कंपोस्ट पिट है उसमें हम डालते हैं. In our school, there is no canteen, so no packaged food items are sold here. We have stopped distributing packaged food items on events like annual functions, and instead we distribute fruits to the students. Changes that we further want to work on are the rainwater harvesting. At the moment, we have done only with one roof, and in the near future, we have around 7 blocks, which means we have 7 roofs. So we are planning to save every drop of water that falls on the roof or on the campus by having the rainwater harvesting tanks, maybe near every roof, or we're going to plan it the best way we can.
Okay. So I think the idea was to share कि, there are schools which are doing a lot, not just waste management, but they've gone a step further into wastewater treatment, rainwater harvesting, solar roofing to save electricity, also the school bills. I think एक last video मैं आपको share करना चाहूँगी, which is on, just a minute, which is on solar roofing, and I think उसके बाद let's do a discussion session. So this is a school in Dwarka in Delhi. जो सोलर पैनल्स होते हैं वो हमारे लिए वो रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, तो वो हमारे जो एनवायरनमेंट पे बर्डन होता है वो बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि अभी इंडिया जो है वो अभी थर्मल एनर्जी पे बहुत डिपेंड कर रहा है। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करते हैं, एक तो वो लॉन्ग रन में कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और दूसरा तो वो पोल्यूशन बहुत कम करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को भी कम कर देते हैं। पहला बिजली का बिल 1 लाख रुपए कम आया, जिसको देख के इतना मजा आया और लगा कि हाँ, विद अ बैंग हमने कुछ किया है। There is a reduction of almost 45 to 46% in their electricity bill. मुझे लगता है कि अब विद इन एन ईयर हमारा लगभग वसूल हो जाएगा। We are associated with the Green School for a very long time, and throughout this journey हमने सबसे पहली चीज ये सीखी कि अगर आपको अपने आप को बचाना है, अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जब ग्रीन स्कूल प्रोग्राम शुरू हुआ तो उससे इतना जबरदस्त मोटिवेशन मिला कि स्कूल में एक ग्रीन वॉरियर्स की टीम क्रिएट हुई। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में ज्यादा कार्बन रिलीज नहीं होता है, तो इनसे हम अपना कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं, जिससे क्लाइमेट इफेक्ट नहीं होता, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाती है। ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट होने की वजह से उनके साथ मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि क्या ये सक्सेसफुल रहेगा। जैसे आज का मौसम है, बादल है बाहर, ऐसे में क्या होगा, तब क्या स्कूल में बिजली नहीं होगी। तब उनको ग्रेजुअली ऑलमोस्ट एजुकेट करना पड़ा कि ऐसा नहीं है, ये मेन ग्रिड में जाएगा, मेन ग्रिड से जैसे पहले बिजली सप्लाई हो रही है उस तरह से होगी। The cost of generation from the panel that you put up on the roof of your school is much less compared to what you will otherwise pay to the DISCOM for that power which is coming in through the distribution company. In the day when your system is generating and you're also consuming, especially in the first half of the day when the school is running, you are likely to run into a deficit. Your consumption is likely to be higher than what your system produces, most likely. So what happens is that deficit is met through the power drawn from the DISCOM. But during the later part of the day, most likely the class is not going on, so your consumption is low while the system is still generating, especially like from 3 to 6 p.m. So during that time, the surplus which is generated by the system will be fed back into the grid. So the net which is drawn and the net which is fed back is metered by the net meter. So you're billed for the net amount. Instead of you being billed for the entire consumption and the entire generation,
for which you have to wait for the end of the month billing cycle for the DISCOM to settle matters. You have settled the matters right there, and the final bill that is generated reflects only the net amount. आज अगर मैं 80 किलोवाट की बात करूं तो it will cost around 46 to 47 lakhs complete installation including the handing over and operation of the project for at least 1 year. But कुछ projects ऐसे भी हैं depending on कि आसपास का दिल्ली NCR में कोई project होता है तो हम उसमें जो O&M है वो 1 year से बढ़ाकर उसे 5 years कर देते हैं so that स्कूल के लिए भी थोड़ा easy रहे and वहाँ का जो maintenance staff है उसको भी वो फिर इजीली हैंडल कर लेते क्योंकि धीरे धीरे हमको भी नॉलेज हो जाती है उस चीज की कि हाउ टू हैंडल द डिफरेंट इक्विपमेंट. स्टॉक को पूरा ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पर रेडिएशन कितना रिसीव हो रहा है, शेडो अगर किसी ऑब्जेक्ट की आ रही है तो वो कहाँ आ रही है, क्या उसका एरिया कवरेज है. आफ्टर दैट कम्स द डिजाइन फेज जिसमें 1 week मैक्सिमम वी कंसीडर. After that installation, like for a 100 kilowatt project, it will take 20 to 25 days. गंदगी होगी तो आपका पावर जनरेशन कम हो जाएगा. हम तो प्रेशर पंप से धोते हैं और उसको कभी कभी वाइप भी कराते हैं. गीले कपड़े से वाइप किया जाता है सारे सोलर पैनल. हमारे स्कूल में हमें हमेशा सिखाया जाता है कि जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे हमें लाइट्स फैंस ऑन नहीं रखने चाहिए, बंद कर देना चाहिए जब भी हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं. और हमारे क्लासेस में एसी नहीं है जिससे भी एनर्जी कंजम्पशन भी कम होता है और वो क्लाइमेट चेंज में भी मदद करता है. एक स्कूल जैसी इंस्टीट्यूशन में ये कि जो हमारे फ्यूचर सिटीजन्स हैं हमें उन्हें तैयार करके चलना है. उनके अंदर ये एक छोटा सा पॉइंट या छोटा सा बीज बोना है कि मैं अकेला भी डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ. हमने हमारे पेरेंट्स को इसके बारे में बताया एंड जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसको हमने उसकी मैनेजमेंट को बताया कि हम भी ये यूज कर सकते हैं. क्लाइमेट चेंज पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इफ वी स्विच टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रादर देन यूजिंग फॉसिल फ्यूल. Okay, so I was reading chat box mein, there were quite a few messages. And Shrima, you were sharing that there are solar panels in your school, so good to know about that. But yeah, I mean, I would want to hear more from you. Any initiatives that you have done in your schools around, sustainable green initiatives, be it waste management, be it solar roofing, be it urban farming or organic farming. So please, let's take 5 minutes to share some success stories. Anyone? You can raise your hand and I can call out your name. Yeah. Yeah. So Ayanang Shu, do you want to go ahead? Yes. Yeah. Ma'am, actually, I'm from West Bengal, and I come from I've come from a school which is situated in a marginal locality. So we have tried to create organic farming in our school premises, inside the school premises, and generally we do that during the winter session. We try to cultivate the foods in our organic farming capacity. And from there we try to deliver the all those vegetables to the midday meal centers so that we don't have to buy from the market. So because we are a school of very small capacity, so
this much we did because we don't have that much of financial support. So this is what I want to say, that if we can initiate a little bit as per our capacity, then we can do something. Okay. Yeah. Thanks. Thank you for sharing. Yeah. Thank you. Anyone else? I'm not forcing you, but I don't want this to be a monologue कि एक डायरेक्शन से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है बट मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा. तो आई थिंक आई रियली वांट टू नो योर लेसन्स एंड योर लर्निंग्स एज वेल. इवन अगर आपको चैलेंजेस हुए हैं, यू कुड शेयर दैट एज वेल, यू नो, इन इम्प्लीमेंटिंग समथिंग. I think everyone wants to go for lunch quickly then. Hello? Yeah, please go ahead, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. मैम हमारा स्कूल स्वच्छ भारत के अंडर मतलब डिस्ट्रिक्ट में उसकी पोजीशन आई थी, तो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो उसको उनको ना नंबरिंग करने के लिए दी जाती थी, नोटबुक्स पे नंबरिंग कर लें वो, ताकि वो पेज है जो वो टॉर ना कर सकें. Okay. और मतलब पूरी सफाई, बच्चे एक इवन कुछ भी गिरा हुआ नहीं मिलेगा स्कूल में, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन. ओके. तो थैंक यू अनुज जी. मतलब बच्चे, यस. तो आई थिंक आप जो बताना चाह रहे हैं कि बिहेवियर चेंज बच्चों का, उसके ऊपर आपके स्कूल ने काफी काम किया है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स दे आर इनटू ऑल दीज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. Anyone else? Maybe we can take one last person. यस मैम. हाँ, बताइए. नमस्ते मैम, मैं देवेंद्र हूँ बूंदी से. मैडम, जब मैंने यहाँ स्कूल में ज्वाइन किया तो एक बहुत बड़ा एरिया बिल्कुल ऐसा पत्थर सा ऐसा पड़ा हुआ था. फिर हमने पूरे स्टाफ से कुछ कलेक्शन करके और उसको अब 1.5 साल हो गए बहुत अच्छे गार्डन के रूप में उसे डेवलप कर दिया हमने. बहुत अच्छे पेड़ वगैरह वहाँ लगा दिए, बहुत बड़ा हो, अच्छा मतलब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो गया. और बच्चों को भी अब सबको अच्छा लगा है. डिस्ट्रिक्ट में भी लोग आते हैं तो स्कूल में देखते हैं, बोलते हैं आपने बहुत अच्छा गार्डन स्कूल के अंदर डेवलप किया है. ओके, थैंक यू देवेंद्र जी फॉर शेयरिंग. मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि वेरेवर आप, जैसे आप बता रहे हैं आपने गार्डन डेवलप किया, आई थिंक आई सॉ दिस इन अ स्कूल वंस. आई वाज ऑन अ विजिट वेयर उन्होंने बहुत सारे लोकल हर्ब्स उगा रखे थे बच्चों को बताने के लिए, यू नो, कनेक्टिंग देम टू प्लांट्स एंड फ्लोरा एंड फौना. पर आज के टाइम में किसी को पता नहीं होता है कि तुलसी का क्या यूज है, बेसिल का क्या यूज है, और यू नो लाइक किचन के पास दे हैड डेवलप्ड लाइक दिस big organic garden growing vegetables and fruits. So I think rather than just growing ornamental plants, we could also push for having like kitchen farms to also impart students, you know, the knowledge of urban farming, because school mein karenge as a practice ya school mein dekhenge to of course they'll go back to their houses also and push it. Yeah, but good to know. उसका एक मैडम काफी एरिया में भी गवर्नमेंट की स्कीम चली थी किचन गार्डन, तो उसमें हमने काफी एरिया में किचन गार्डन भी डेवलप किया है. इसमें सब्जियां वगैरह हम यहाँ पर लगाते हैं. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू फॉर शेयरिंग. So let's move to the last part of the session. I think we talked a bit about case studies. हमने कुछ video case studies देखे, specifically schools में क्या क्या हो रहा है. But majorly schools में, you know, why schools have to do something on solid waste management, क्यों जरूरी है. ये टीचर का फोटो है जो कि बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं स्कूल में कि कंपोस्टिंग कैसे करते हैं, और and of course he's telling them कि you go back and do it in your house also, एक मटके के अंदर. So I think जैसा कि it's a repetition, but I'll repeat it again and again, that it is very important for all of you as teachers, as educators, to pass on the best practices related to environment. Because अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो शायद bookish knowledge, you know, is never enough. तो I think कहीं ना कहीं practicality और demonstrate करना जरूरी है. और आप लोगों ने काफी कुछ initiatives बताए, but ये भी देखना जरूरी है कि क्या आप उन सब initiatives में बच्चों को involve करते हैं. I think it's very very important. छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, एनवायरनमेंट से रिलेटेड
इनिशिएटिव्स में स्कूल में बच्चों को जोड़ना आई थिंक बहुत जरूरी है। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जो हमारा सेंट्रल लॉ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, वो ये कहता है कि वेस्ट मैनेजमेंट का ओनस जनरेटर का है, चाहे वो मैं हूं एज इंडिविजुअल जनरेटर, चाहे वो एक बच्चा है, चाहे वो एक टीचर है, चाहे वो एक ब्यूरोक्रेट है। सो जो आप जनरेट कर रहे हैं उसको मैनेज करना इज योर ड्यूटी। एंड सबसे तीसरी चीज की बेस्ट प्रैक्टिसेस को रेप्लिकेट करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग बहुत मैं आप लोगों से इसलिए भी पूछ रही हूँ ताकि कलकत्ता में जो हो रहा है या द्वारका में या जो हो रहा है या गुरुग्राम में कुछ हो रहा है या पाली में एक छोटे से गांव में जिस स्कूल में इतना कुछ हो रहा है, अगर आप ये सब केस स्टडीज सुनते हैं तो ऑफ कोर्स आप प्रभावित होते हैं और क्या आप इन्हें अपने स्कूल के लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है और इसलिए हमें केस स्टडीज अलग अलग लाना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक आई विल ऑल्सो एनकरेज यू, अगर आपके सराउंडिंग में आपके स्कूल में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो नोवेल हैं, जो आपको लगता है बाकी स्कूल्स नहीं कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें शेयर करें ताकि और लोग प्रोत्साहित हो पाए और स्कूल्स प्रोत्साहित हो पाए। तो जो रूल्स हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो ये कहते हैं कि स्कूल बेसिकली एक इंस्टीट्यूशनल जनरेटर है, मतलब कि एक बल्क जनरेटर है और सारे इंस्टीट्यूशंस को एज पर द लॉ अपना वेस्ट खुद मैनेज करना होगा। सबसे पहला कंडीशन है कि 3 पार्ट में आपको अपना वेस्ट सेग्रीगेटेड कलेक्ट करना है, विच इज वेट, ड्राई एंड डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। तो जैसा कि आप देखेंगे ये एक स्कूल में गीला और सूखा बिन रखा हुआ है। डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट आई एम लुकिंग एट बाथरूम्स एंड दोज एरियाज या लैब एरियाज जहाँ पे हजार्डस वेस्ट कैन कम आउट। जो भी आपका वेट वेस्ट है आई थिंक स्कूल लेवल पे कोशिश करनी चाहिए कि गीला कचरा एट सोर्स ट्रीट हो। एंड हमने ऑफ कोर्स बहुत सारे केस स्टडीज देखे जहाँ पे कंपोस्टिंग इज एन ऑप्शन, बायोगैस इज एन ऑप्शन, there are multiple options to manage wet waste, and linking it to urban gardening or kitchen gardening at school is also an option. कि आपके स्कूल में किचन गार्डन है तो क्या आप खाद भी एक लेवल अप जा सकते हैं, आप स्कूल में खाद बना सकते हैं गीले कचरे से और उसे किचन गार्डन में यूज कर सकते हैं। दूसरा जो आपका रिसाइक्लेबल वेस्ट है, पेपर, कार्डबोर्ड, एंड ऑफ कोर्स स्कूल में बहुत सारा रिसाइक्लेबल वेस्ट निकलता है। लॉट ऑफ इट इज स्टेशनरी, डिस्कार्डेड बुक्स हो गए, पेन्स, लॉट ऑफ रोल्स। तो उसको ऑफ कोर्स आप देयर हैज टू बी अ डेडिकेटेड स्टेशन जहाँ पे ये सारा वेस्ट कलेक्ट होके जाए, अलग अलग बोरों में या स्टेशंस अगर आप बना सकते हैं लोहे के पार्टीशंस करके, वहां सॉर्ट हो एंड देन फिर आप इसे किसी ऑथराइज्ड रिसाइकलर से कनेक्ट करें। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट भाग जो कि आपका रेसिडुअल वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट, ये आप कॉर्पोरेशन या किसी ऑथराइज्ड एजेंसी को दें, क्योंकि ऐसा वेस्ट चाहे वो लैब वेस्ट हो, चाहे वो सैनिटरी वेस्ट हो, चाहे वो और किसी भी तरह का हजार्डस वेस्ट हो, ये आप स्कूल के लेवल पे स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये 3 चीजें आपको देखनी है। क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लोग देख सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट पे? पहला, सेग्रीगेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा, कंपोस्टिंग, दिस इज ऑल्सो समथिंग जिसमें आप बच्चों को कचरा प्रबंधन से जोड़ सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे एक स्कूल में डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि पिट कंपोस्टिंग, एक पिट खोदा है और उसमें कैसे कंपोस्ट करते हैं, एंड देन यू कैन असाइन इट टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स एज एन एक्टिविटी टू टेक केयर ऑफ दोज कंपोस्टर्स। और तीसरा और चौथा जो मैंने बोला था कि रिसाइक्लेबल सॉर्ट होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये भी फोकस होना चाहिए कि कैसे हम प्लास्टिक कम करें, पेपर वेस्टेज कम करें। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये सिखाना कि आप प्लास्टिक कम से कम यूज करो, प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स यूज करो, बोथ स्कूल लेवल पे और घर के लेवल पे भी। आज के टाइम से बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो प्लास्टिक आइटम्स बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, जो जंक फूड बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। ए, बिकॉज जंक फूड इज अनहेल्दी, बट बी ऑल्सो कि जंक फूड से बहुत सारा पैकेजिंग वेस्ट निकलता है जो कि it does not gets recycled. That is a major part of the litter. So clearly these are some of the steps that you can take. And sanitary waste के लिए अगर आप invest कर सकते हैं school level पे, you can get like those small sanitary incinerators. But then that's totally a very school to school or case to case basis choice depending on
कितना सैनिटरी वेस्ट आपके स्कूल से निकलता है, कितना बायोमेडिकल वेस्ट आपके स्कूल से निकलता है और कितना लैब वेस्ट आपके स्कूल से निकलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप स्कूल लेवल पे कर सकते हैं, आई मीन नॉर्मली हम कहते हैं कि स्कूल में वेस्ट मैनेज करिए, बट आपको क्वांटिटीज पता है? क्वेश्चन मार्क। लाइक डू यू नो आपके स्कूल में कितना वेट वेस्ट जनरेट होता है, कितना ड्राई वेस्ट जनरेट होता है? ड्राई वेस्ट में भी पेपर कितना है, प्लास्टिक कितना है, कार्डबोर्ड कितना है, ग्लास कितना है, हजार्डस वेस्ट कितना है? और ये इस डेटा के बिना आप कैसे अपने स्कूल में एक मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं? तो एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है जो कि ऑफ कोर्स हम सिटी लेवल पे करते हैं, बट आई हैव सॉर्ट ऑफ कस्टमाइज्ड इट फॉर स्कूल लेवल। तो व्हाट यू कुड डू इज कि आप इसे एज अ स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी की तरह क्रिएट कर सकते हैं, वेयर यू कैन क्रिएट अ वेस्ट ऑडिट टीम जहाँ पे आप कुछ स्टूडेंट्स को ले सकते हैं, एंड द आइडिया इज कि हमें स्कूल में एक हफ्ते के अंदर कितना वेस्ट जनरेट होता है, वीकली बेसिस और डेली बेसिस पे पता करना है, और उस वेस्ट का कैरेक्टराइजेशन क्या है। एंड आप स्कूल में ग्रुप्स बना सकते हैं, और जो ग्रुप्स कलेक्ट करेंगे वेस्ट रोज, अब ऑफ कोर्स अब एक कलेक्शन पॉइंट होगा आपके स्कूल में जहाँ से रोज का कचरा जहाँ डंप होता है, तो दी स्टूडेंट्स विल कलेक्ट इट। एक सॉर्टिंग स्टेशन आपको बनाना पड़ेगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जहाँ पे एक वेइंग मीटर यू हैव टू हैंग। आपको कुछ 10-12 बकेट स्टूडेंट्स को देने पड़ेंगे, और स्टूडेंट्स को एक पैम्फलेट देना पड़ेगा जिसमें 12 जो भी भाग हैं वो 12 भाग में अपने वेस्ट को 10 या 12, यू कैन चूज हाउ मेनी फ्रैक्शंस, आप कितना डिटेल में जा सकते हैं, और स्टूडेंट्स बेसिकली हर एक फ्रैक्शन को ऑन अ डेली बेसिस वे करेंगे और उसका फिर टोटल करेंगे। तो इससे आपको आपका स्कूल का वेस्ट कैरेक्टराइजेशन पता लगेगा, और इसके बेसिस पे एक छोटा सा रिपोर्ट स्टूडेंट्स के साथ बनाया जा सकता है, जिसके बेसिस पे स्कूल में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वेस्ट मैनेजमेंट का, उस पे आप उसको आप कंक्लूड कर सकते हैं। बिकॉज विदाउट दिस बेसिकली आपका जो भी कंक्लूजन है इट्स अनसाइंटिफिक, बट वंस यू डू दिस यू एग्जैक्टली नो कि मेरा पेपर कितना है एवरेज, मेरा स्कूल में प्लास्टिक कितना निकलता है, कितना गीला कचरा निकलता है, एंड यू कैन प्रिपेयर अ डिजाइन। So these are the 12 fractions that you can consider. Paper, horticultural waste, plastics, metals, glass, textile shoes आप हटा सकते हैं, I'm assuming school level पे इतना नहीं generate होता, special waste, composite products and any other product. And this is a sheet basically जो आपको 7 दिन तक fill करनी है। तो this is like a survey sheet जहाँ पे सबसे पहले आप daily enter करेंगे कि बैग का वेट कितना है, फिर वेस्ट कितना है उसके अंदर, एंड ऑफ कोर्स टेयर करके यू विल गेट द वैल्यूज, एंड दिस इज आल्सो लाइक बेसिक मैथमेटिक्स, सो इट्स आल्सो अ वेरी नाइस मैथमेटिकल एक्सरसाइज। एंड उसके बाद हर दिन का जो आपका वेस्ट है उसका आप अलग अलग फ्रैक्शंस में कैरेक्टराइजेशन करेंगे। तो इससे आपको एक तो अपने स्कूल के वेस्ट के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी, दूसरा आप अपने स्कूल के लिए एक अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं। पर इसके बिना प्लान बनाना वुड बी इक्वल टू मेकिंग अ प्लान विदाउट हैविंग एनी पिक्चर इन प्लेस। सो दिस डेटा 7 दिन का या 4 दिन का या 5 दिन का विल एक्चुअली गिव यू अ लॉट ऑफ इंसाइट ऑन क्या प्रॉब्लमैटिक वेस्ट स्ट्रीम्स हैं मेरे स्कूल में, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इनटू। स्कूल लेवल पे आप लोग क्या क्या वेस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव्स अपना सकते हैं? पहला, बैन सिंगल यूज प्लास्टिक्स। बिल्कुल भी सिंगल यूज प्लास्टिक्स आई थिंक अब सरकार ने भी बैन कर दिए हैं कुछ 10-12 आइटम्स। सो क्लियरली आई थिंक schools should have a mandate to not allow any junk food, any single use plastics, and there are various ways of doing it. Of course, one is by telling students not to consume plastics, by probably taking them on an outdoor visit and telling them कि प्लास्टिक का क्या इम्पैक्ट होता है। मैंने आपको कुछ शॉकिंग पिक्चर्स दिखाई, बट आई एम श्योर द मोमेंट आप अपने स्कूल के बाउंड्री से बाहर निकलेंगे तो आप विजिबली दिखा सकते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक्स। देन यू कैन फोकस ऑन रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज और स्टार्ट अ कैंपेन अराउंड योर स्कूल कि आप कैसे फूड वेस्टेज मिनिमाइज कर सकते हैं। तीसरा, स्कूल लेवल पे कंपोस्टिंग। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच स्टूडेंट्स आज के टाइम में कि कंपोस्ट कैसे कर सकते हैं। इट्स अ सिंपल DIY कि you compost and you grow your own food, something like this can be promoted in schools. चौथा, recycling programs in school,
क्या आप अलग अलग आइटम्स को अपसाइकल कर सकते हैं, और कैसे अपने स्कूल को कनेक्ट कर सकते हैं एक रिसाइकलिंग प्रोग्राम से, ताकि यू कैन शोकेस योर स्कूल एज अ जीरो वेस्ट स्कूल एंड ओवरऑल work towards zero waste school in the future. It's now zero waste school is very easy to say. आप एक दिन में, एक महीने में, एक साल में zero waste school नहीं बनेंगे, but you'll have to take all the above steps and all these slides that I showed you, all those steps to sort of become a zero waste school, but also focusing on minimization. कि क्यों less consume करना जरूरी है आज के टाइम में, क्यों segregation important है. So I think if you follow all these steps holistically, you'll be able to have a zero waste school, and of course you will get a lot of accolades if you become one. जैसा कि हमने कुछ videos देखे जहाँ पे बहुत से schools जिन्होंने अच्छे green initiatives लिए हैं, they were awarded also. So there are a lot of campaigns, there are a lot of government missions, and I'm sure CCRT also would promote that ki you all become zero waste schools. Now, I don't know how much time they have for this exercise, but there is basically an exercise which I usually give, which is what is that I'm giving you like a demo school ka data, which has got population, kitna school mein waste generate hota hai per month, kitna waste generation है per capita, क्या स्कूल का segregation status है, और स्कूल में क्या अलग अलग components हैं. तो I think जो मैंने आपको कहा था कि characterization study, assessment study क्यों important है, ताकि आपको पता चले कि क्या अलग अलग streams आपके स्कूल में generate होती हैं. And based on all this data जो इस sheet में आपको provided है, आपको अपने स्कूल के लिए एक waste management plan बनाना है. So I think you can quickly go through these questions, and I'll come back to you. My question to all of you is, number one, going back, what kind of interventions you want to take for your schools, and what do you think आपके स्कूल के लिए एक effective waste management plan कैसा हो सकता है based on this lecture. इसके learning से आप going back कैसे students को involve करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं आप, क्या क्या ideas आपको मिले. So I think we'll take a minute. You can go through the questions. You don't have to answer this question specifically. ये slides आपको मिलेंगी, तो आप ये assessment, ये study अपने free time में कर सकते हैं. You can share the sheets with me, or you can share it with CCRT and they can share it with me. But I think what I really want to know from all of you, or some of you, is that going back, what all things can you adopt regarding waste management? I think session का focus कचरा प्रबंधन है school level पे, तो आप क्या क्या कर सकते हैं. So I think if you all have seen this, let's move to, yeah. तो आई थिंक अब मेरा बोलने का टाइम खत्म एंड आपका बोलने का टाइम चालू. I'll pass on the mic to all of you. Mithun, we have about 10 minutes, right? Ma'am, we have 15 minutes. We can 15 take minutes. the questions from teachers. तो Yeah. मैंने देखा था टीचर भी बहुत इंटरेक्टिव है इस सेशन में, तो उम्मीद है कि सारे टीचर मन में जो प्रश्न आ रहा है अभी आप पूछ सकते हैं सर. Yeah. मैम ने कहा कि अभी कम्युनिकेट करेंगे. तो आप एक एक करके बताइए कि कैसे आप स्कूल में एक इफेक्टिव प्लान बना सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड ऑन दिस सेशन, और आप अगर ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं तो प्लीज शेयर. एंड आई थिंक लेट्स, आई एम नॉट जजिंग यू, नो वन इन द ग्रुप इज जजिंग यू. तो आप जो भी शेयर करना चाहते हैं प्लीज ओपनली शेयर करिए. इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म. ओके, सो डोंट कीप एनी इनहिबिशन किसी भी तरह का. सो आई सी अ हैंड अप. वीना जी बताइए. गो अहेड. मैम एक्चुअली जैसा मैंने पहले भी बताया था, मुझे खुद को ही प्रॉब्लम हुई है, तो शायद इसलिए वही नेसेसिटी वाली बात है कि हमने कुछ इन्वेंशन करने की कोशिश की. मैम एक्चुअली बिल्डिंग में जितनी भी पार्टीज होती हैं हमारी, या स्कूल में बच्चों की दिवाली के पहले एक दिन या फंडे, लाइक कोई भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन होता है, तो हम मोस्टली प्रेफर करते हैं बच्चे घर से ही टिफिन या प्लेट्स लेके आए. इवन हमारी टीचर्स की भी पार्टी होती है, हम उसमें डिस्पोजेबल्स यूज नहीं करते.
सारे अपने घर से खाना बना के लाते हैं एंड विद एक स्पून और एक प्लेट भी कैरी करते हैं, तो हम लोग उसी में ही शेयर करके सब लोग खाना खाते हैं और वो घर जाके वॉश हो जाते हैं। तो कुछ एक ये है। और एक मैम एडिशनली हमने जैसे जिसका भी बर्थडे, एनिवर्सरी, बच्चों का बर्थडे या जो भी होता है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा कलेक्शन अपनी चॉइस से जो भी देना चाहते हैं हम इकट्ठा करते हैं, उसको प्लांटेशन में, पाइप्स लाने में, क्योंकि मैम फंडिंग स्कूल की तरफ से या किसी और से हम डिमांड नहीं कर सकते हैं अगर हमें कुछ इनिशिएट लेने हैं। हमारे यहाँ एक पीटीआई सर हुआ करते थे, अब तो खैर उनकी ट्रांसफर हो गई, अभी कोरोना टाइम में एक्चुअली वो सब कुछ खत्म हो गया मैम। अदरवाइज हमने ग्रीन गार्डन, तोरी के प्लांट्स मैम, ये जो इजीली हो जाते हैं अपने आप, तोरी के प्लांट्स लगाए थे मैम, टीचर्स खुद लेके जाते थे। मेथी, मूली, आलू मैम, ये छोटे छोटे जो इजीली बन जाते हैं, वो हम लोगों ने छोटे छोटे क्यारियां बनाई हुई थी जो बच्चे खुद कर लेते थे लंच टाइम में या मॉर्निंग टाइम में। 2 बच्चों की ड्यूटी लगा दी प्लांटेशन में भी और उनको वाटरिंग के लिए। तो ये छोटा छोटा हमने स्टार्ट किया था, बट ये कोरोना टाइम की वजह से सब मैम बंद हो गया है। तो थोड़ा सा ये वापस हम लोग जैसे ही स्कूल स्टार्ट होते हैं तो फिर से कोशिश करेंगे रीस्टार्ट करने की। Thank you, Veena, for sharing. But I'm sure, I know, I mean, एक सबसे बड़ा चैलेंज आप सबके लिए ये है कि आप सब ऑनलाइन मोड पे चले गए हैं, बट आई थिंक आप ऑनलाइन मोड पे हैं तो आप एटलीस्ट स्टूडेंट्स को घर पे कुछ ना कुछ करने को ऑफ कोर्स प्रोत्साहित कर सकते हैं, कि ये उगाओ या स्टार्ट कंपोस्टिंग और हाउ टू डू इट, या एनवायरनमेंट के बारे में व्हाट ऑल दे कैन डू, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम. So of course you can be also more innovative about कि of course इस remote mode में भी कैसे students घर पे activity form में कुछ कर पाए. Anyone else? We have 90 teachers. At least 10 तो share करें आज. नारिया पारा, हाँ बताइए. रवि कुमार जी, आपने अपना हैंड रेस किया है, डू यू वांट टू शेयर? हेलो या देवेंद्र जी, गो अहेड. मैडम, जैसे इसमें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इसमें जो मैंने देखा है, तो 3R का फॉर्मूला है, जैसे तो रिड्यूस, रिफर, रीयूज. तो जो देवेंद्र जी, कल भी आपका कनेक्शन में डिस्टर्ब हो रहा था. हेलो सर. देवेंद्र जी, कल भी आपका कनेक्शन में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था. आप जब ऑडियो में बात कर रहे हैं, थोड़ा वीडियो ऑफ करके कर सकते तो थोड़ा सा बेटर नेटवर्क मिलता है सर. आपका ऑडियो कल भी ब्रेक होके आ रहा था. जी सर, अभी बताइए सर. हाँ सर, आ रहा है आवाज मेरा? अभी क्लियर है. तो मैडम, जैसे अभी जो समर्स के अंदर जो हमारे उसकी ऑयल की जो कैन आती है, बाजार से लेते हैं हम ऑयल के लिए 5 लीटर वगैरह की. तो अभी बच्चों ने प्रोजेक्ट किया था, उसमें उसको काट करके और उनके पक्षियों वगैरह के लिए, दाने के लिए या पानी के लिए, उसका उन्होंने इस तरीके से कुछ बनाया था उन्होंने. तो ये एक बहुत अच्छा उसका रीयूज था, उसका जो वेस्ट था उसका. ओके, थैंक्स देवेंद्र जी. आई थिंक ये एक रीयूज का बहुत अच्छा केस स्टडी है, और इवन अपसाइकलिंग का, कि आपने कचरे कोई चीज जो डिस्कार्डेड थी उसका आपने यूज एनहांस कर दिया. तो थैंक यू फॉर शेयरिंग. एनीवन एल्स? मैम, मैं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर देश दीपक शुक्ल हूँ. हाँ बताइए शुक्ला जी. मैम, कुछ समय पहले, 2-3 वर्ष पहले, हमारे जहाँ मैं कार्यरत हूँ, हरदोई जनपद है, वहाँ गर्मियों में हमने देखा कि पानी वाटर लेवल से नीचे चला गया. हमारे जो हैंड पाइप्स थे वो नहीं काम कर रहे थे. बड़ी समस्या, बड़ी दिक्कतें हुई. तो हम लोगों ने, हमारे विद्यालय मैनेजमेंट ने कुछ जल के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को बुलाकर के कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें हमारे विद्यालय के बच्चों को जल प्रबंधन पर विशेष एक सेमिनार या वर्कशॉप टाइप से सिखाया गया, और जल प्रबंधन के और जल संरक्षण के विभिन्न प्रकार के उनको वो बताए गए. हेलो जी, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ शुक्ला जी. उसके बाद हम लोगों ने उनको जल प्रशिक्षक बना करके विभिन्न ब्लॉक्स में, तहसील में भेजा, ताकि वो गांव-गांव में जा करके
लोगों को जल संरक्षण एवं जल से होने वाले प्रदूषण के बारे में समझा सकें। तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, उसका बहुत लाभ हुआ। दूसरा ये रहा कि हम लोगों ने विभिन्न महापुरुषों के जन्मोत्सवों पर, जयंतियों पर वृक्षारोपण का कार्य अपने विद्यालय में भी किया और शहर में अन्य जगहों पर भी किया है। तीसरी एक और हमने इनोवेटिव कार्य किया कि व्यक्तिगत मैंने प्रारंभ किया था कि विद्यालय में 3 दिन कम से कम जो नजदीक के शिक्षक है, कर्मचारी हैं, वो साइकिल से आए। तो हम लोग लगातार महीनों साइकिल से आए और वायु प्रदूषण को भी रोकने का कार्य किया है। साथ में ही विद्यालय में हमारे यहाँ जगह कुछ कम है, तो हम और कुछ हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारियों ने मिलकर फावड़े से खोद करके मिट्टी में सब्जियां बोई और तैयार भी कर ली, परंतु दुर्भाग्यवश बंदरों का आतंक होने से वो सब्जियां हम खा नहीं सके। परंतु हम लोगों ने इतना वो कार्य किया था कि हमारे बच्चों ने भी घर में जाकर के उसका पालन किया और कई बच्चों ने बताया कि सर हम लोगों ने भी अपने किचन गार्डन में या अपने जगह सामने खाली पड़ी हुई जगह में हम लोगों ने ऐसे कार्य किए। तो इससे हमारे बच्चे भी प्रोत्साहित। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी केस स्टडीज बताई आपने शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रूपा देवी जी, आप कुछ बताना चाहेंगी? आपका हैंड रेस्ड है। और निशांता, यू गो अहेड। Yes, ma'am. Yeah. Can you hear me? So yeah, go ahead, Nishanta. Yeah. Thank you, ma'am. So, ma'am, I'm from Assam, and I'm very fresh into this system. I have joined this service last year, September, in the month of September. So, I have a question that what I see in my school, the use of fossil fuel while cooking midday meals. ओके, सो ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ कि वो काफी जो लकड़ियां होती है काफी यूज किया जाता है। माई स्कूल इट इज इन द विलेज एरिया, तो वहाँ पे देयर इज नो सच अ स्कर्सिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, लकड़ियों की कुछ भी स्कर्सिटी नहीं है, तो उसका एक जो अनसस्टेनेबल यूज हो रहा है काफी ज्यादा। ऑल्टरनेटिव बताया था जो क्या था आपका बायोगैस का जो एक था मैकेनिज्म, तो दैट इज आई थिंक इट इज मतलब उसके अफोर्डेबल में प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि we don't have this amount of fund। और मैं स्कूल का मतलब एक मोस्ट जूनियर टीचर होने के कारण मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। तो मुझसे आपसे एक ही मेरी गुजारिश है, आई हैव जस्ट अ सिंगल क्वेश्चन है, मैं जो हमारी कुकमैन जो है स्कूल में जो 3 मैडम है, उनको हाउ डू आई इंस्पायर देम कि आपको इतना ज्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं करना चाहिए। यस, फॉसिल फ्यूल इज अवेलेबल देयर, आप लकड़ियों को ले आते हो एंड यू आर यूजिंग दिस in an unsustainable manner, which is not good for the environment, which is not even good for our students. So my request to you, so how do I inculcate this environment friendly attitude among these ladies, among these madams? So this is my questions, ma'am. Thanks, Nishanta. I think बहुत valid question, and I really like the spirit that you want to change, their practices which are quite environment unfriendly. I think सबसे पहले more than that, it's important to check whether you can check with school's administration, because whatever they are cooking and whatever fuel they are using, most of it is like an administrative decision, right? So probably the right way to approach about it is to have a meeting with your school administration, who are also knowledgeable enough to understand that why cooking on wood is not very sustainable, because we are using a natural resource, and then discussing with them some of the alternatives. So biogas, of course, which I showed in a few examples, could be one. But उसके लिए ये जानना जरूरी है, what is the sample size of your school, कितने students हैं, if it has, what kind of biogas system you want to install. Is it linked to a toilet? That's a different model. Is it like related to your municipal solid waste? That's a different model. So of course, that is more like a technical thing. But in order to first start the conversation, best would be that you approach your school admin and then you talk to them, you highlight this issue to them, and I'm sure they would be convinced, as a first step, rather than directly talking to, these women who are cooking, because वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और source नहीं है,
एंड अगर स्कूल का एडमिन कोई और सस्टेनेबल रिसोर्स प्रोवाइड कर सकता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा. सो एज अ स्टेप 1 आई थिंक you could right away approach towards this. नहीं होता है तो we'll get back to it. Yeah, thanks. Thank you, Okay, who else? Rupa Devi ji, do you want to go ahead? Yes, madam. हाँ, बताइए. Can I tell in Marathi, madam? Can I आप speak in बताइए और फिर कोई मुझे ट्रांसलेट कर दीजिएगा. आप चलेगा, आप मराठी में बताइए. ओके मॅडम. ओके मॅडम. मॅडम, आमच्या शाळेमध्ये आता ऑफलाइन स्कूल चालू आहे. ऑफलाइन स्कूल चालू हो गई है हमारे स्कूल में. और जब से चालू हो गई है तब से हमारा एक ब्रीद है, आमचं एक ब्रीद है आता सध्या की क्लीन स्कूल एंड ग्रीन स्कूल. हर स्टूडेंट को, हर क्लास के हर स्टूडेंट को हम एक हैबिट उनको अब सवय, त्यांना आम्ही एक सवय आता देतोय की स्वतः प्रत्येक मुलगा स्वतः आपल्या स्वतःचा कचरा हा डस्टबिन मध्ये स्वतः टाकणार आणि आपला वर्ग शाळा भरल्यानंतर स्कूल शुरू होने के बाद 5 मिनट पहले वो क्लास क्लीन करने के लिए अपना समय देते हैं 5 मिनट. मैंने ऐसी स्टोरी जापान की ऐसी सुनी थी कि वहाँ के बच्चे खुद ही अपना क्लास, अपना जो अपने घर में जो है अच्छे है स्कूल सब वो खुद ही क्लीन करते हैं. और ये हैबिट हम बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि अपना स्कूल, अपना क्लास हम खुद ही स्वच्छ रखें. इसलिए बच्चे स्कूल शुरू होने से पहले जो खुद का 5 मिनट का जो टाइम है वो क्लीन करने के लिए देते हैं. स्कूल जब छूटने वाली होती है तब छूटने से पहले 5 मिनट और फिर वो अपना टाइम अपना क्लास क्लीन करने के लिए देते हैं. और हर एक क्लास का एक वीक में एक दिन का नंबर होता है कि पूरा स्कूल वो खुद स्वच्छ करते हैं, क्लीन करते हैं. और टीचर भी उनके साथ रहते हैं, वो भी उनमें इन्वॉल्व होते हैं. हम प्रत्येक हर एक क्लास में पर्यावरण समिति और स्वच्छता समिति हमने बनाई है. एनवायरनमेंट कमेटी एंड स्वच्छता समिति, उसमें बच्चों का ही हमने ग्रुप किया है और उनके ऊपर उसकी जिम्मेदारी भी दी है. और हम भी उसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं, देखते हैं कि सब अच्छा है, मुझे अच्छी तरह से क्लीन किया गया है या नहीं. ग्रीन स्कूल के लिए हमारे स्कूल को जगह नाही आहे. म्हणजे खूप गर्दीमध्ये आमची शाळा आहे मॅडम आणि जागा नाहीये, अंगण वगैरे खेळायला मैदान नाहीये. फिर हमने बच्चों को क्या किया है, जो वेस्ट मटेरियल होता है घर में, प्लास्टिक का हो या कुछ भी जो होते हैं बकेट और कुछ भी बच्चे स्कूल में लाते हैं जो वेस्ट है मटेरियल, और उसमें प्लांटेशन बच्चे करते हैं. और जो स्कूल छूटने के बाद उनके बोतल में जो पानी होता है वो हर रोज बच्चे जाते समय वो प्लांट को दे के जाते हैं, यानी वाटरिंग करके जाते हैं. यानी बच्चों को ये ओकेजनली नहीं करने की हैबिट नहीं होनी चाहिए. वो रोज उनके एक स्वयं शिस्त, बच्चों में स्वयं शिस्त होनी चाहिए. इसलिए रोज हर एक टीचर हम बच्चों की तरफ इस बारे में उनको बताते हैं. और खुद भी रूपा जी, मैं आपको कट करूंगी. थैंक यू सो मच. आई थिंक आप बहुत सारी केस स्टडीज और बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बता रही हैं, बट आई थिंक औरों को भी थोड़ा मौका मुझे देना पड़ेगा. रसूल अरंदिया, आप आई थिंक आपने मैसेज में डाला है, यू वांट टू शेयर समथिंग, प्लीज गो अहेड एंड थोड़ा शॉर्ट रखिएगा. Okay, sure, ma'am. Rasul Arandia from Jamnagar, Gujarat. Actually, in Gujarat, we have grant called Eco Club. We get particular grant for Eco Club activities like grow more trees, like cleanliness, like to build nests for the birds, and how to make our surroundings and ground and classroom clean.
So it is there in the criteria of our government guided or school management committee that Eco Club is active, and in all the primary schools, in all the primary as well as in secondary schools, we get this kind of grant and this kind of activities, and we have to prepare a report, annual report, that what we have done during these Eco Club activities. So we are facilitate to do these kind of activities to keep surroundings clean and more different types of activities. Thank you. Okay, thank you, thank you. Last 2 minutes before I hand over to Mithun, maybe a minute more. Anyone else who wants to share, please? Srimoy Banerjee is also. Srimoy, you want to share something? Ma'am, you can unmute yourself. And Yes, ma'am. One small thing I wanted to share. We have SUPW or work education in our school. One period per week is dedicated to that subject for each class. And what our teacher has done, she has asked every student to plant, means grow something in his her home, and click pictures of that growing plant as it gradually grows from a seed to a sapling, then to a small plant, then to a bigger plant. And the kids have already, they are very excited to share these things with them. And small plants like gram plants or pea plants, they grow by themselves. And they also bring samples of that to the school. And the kids are awarded. They get rewards based on the way they have participated, or the amount of care that they have taken in order to make the plants bloom. Some of them even grow flowering plants or small vegetable plants. So that is an initiative which the teacher has taken, and we also help her so that the children become aware of their surroundings. They become aware of the need of taking care of their environments, and as a result our school is getting greener by the day. So that's all I have to share with you. thank you, Srimoy. That's very, I mean, they're not only learning about the science of germination, but they're also getting connected to the environment. So I think, thank you for sharing that. So yeah, I think, thank you. I mean, in spite of being online, it was really insightful. I think ये बहुत, आप सबने अपने इतने सारे विचार शेयर किए, इतने सारे केस स्टडीज शेयर Yes, किए. ma'am. I want to say something. Yes, please go ahead. Yes, ma'am. अरुण कुमार from हरियाणा. मैं एनवायरमेंट जी बिल्कुल 1 मिनट ही लूंगा क्योंकि we are already near to get off. Yeah, go ahead, Arun ji. जी हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था अभी कोरोना से पहले. पौधागिरी प्रोग्राम पूरे हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में थ्रू आउट स्टेट चलाया गया, और हर एक बच्चे के लिए ये कंपलसरी था कि वो अपने स्कूल कैंपस में, अपने घर के आसपास, अपने सराउंडिंग में जहां पर भी उसे जगह मिलती है, वो स्कूल अपने स्कूल से, कंसर्न स्कूल से पौधा ले, प्लांट ले और उसको लगाए और उसको ग्रो करे. उसका पिक भी डालना था कि वो किस पोजीशन पर है, पौधा चल रहा है या पौधा अभी ऑफ हो गया है, कितना बड़ा है. तो ये हर बच्चे को कनेक्ट किया था एनवायरनमेंट से हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने. फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ये प्लांट सप्लाई किए गए हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से. दूसरा मैं बताना चाहता हूँ एक केस स्टडी कि 3-4 साल पहले मैं आज से दूसरे वाले स्कूल में पोस्टेड था, तो मैंने वहां पर बच्चों को कनेक्ट किया एनवायरनमेंट से, और उन बच्चों से ही मैंने हट्स बनवाई. जो आर्ट एंड कल्चर का उनका पीरियड रहता था, मैंने उसमें अपने आप को कनेक्ट किया, उन बच्चों से मैंने हट्स बनवाई, और वो हर बड़े ट्री के ऊपर मैंने फिक्स करवाया सीढ़ी की सहायता से. और हमने काफी टाइम के बाद देखा, वाटर पॉट्स भी लगाए, कुछ और जो मोटे अनाज होते हैं उसके पॉट्स भी हमने पौधों के ऊपर लगाए. तो हमने पाया कि काफी टाइम के 1-1.5 महीने के बाद उसके अंदर पक्षियों ने घोंसले बनाए, और फिर वहां पर उन्होंने, यानी कि अपना प्रजनन करने के बाद बच्चे भी वहां पर पैदा हुए उन पक्षियों के. तो मैंने इस तरह से बच्चों को कनेक्ट किया, हट्स लगाकर ट्रीज के ऊपर बच्चों को एनवायरनमेंट से कनेक्ट किया. साथ ही साथ मैंने उनको घर पे भी वाटर पॉट्स और खाना और ये दाना डालने के लिए प्रोत्साहित किया.
Thank you, Arunji. I think you're a true environmental warrior doing so many things with students. Thank you so much for sharing.